guys, welcome to Ironic Investor Daksh. Now we are a family. We are called All Weather Advisors. If you want any advice, you can contact us. The topic for today will be why will people, especially middle class and lower class, that I also belong to, usually never invest in technology. मतलब जो नई टेक्नोलॉजीज आती हैं उसमें हम लोग इन्वेस्ट नहीं करते हैं. क्यों नहीं करते हैं, क्या रीजन रहते हैं, क्यों करना चाहिए, कौन सी टेक्नोलॉजी में किस इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट करना चाहिए, इस सब के क्वेश्चंस एंड आंसर्स हम देखेंगे. और ये भी देखेंगे कि जिन लोगों ने अपकमिंग टेक्नोलॉजीज में इन्वेस्ट किया था, फॉर एग्जाम्पल जैसे Amazon को आप सभी जानते हैं. आज के डेट में आप सब डिलीवरीज लेते हैं उससे. Amazon प्राइम भी आपने ज्वाइन किया है. द ओनर इज जेफ बेजोस. He was working with a big financial company, a big company in finance, and he was on Wall Street, which is a very big thing. But at the age of 35, he decided that internet is an upcoming technology, and in 1994 or 1996, he started his business even before the dot-com bubble that began in 1999. So his company is only a few companies. His company is amongst the few companies which have survived the dot-com crash and have taken the advantage of the upcoming revolutionizing technology like internet, which was 25 years ago. Now we have a different technology altogether in our hands, and how to invest in it and how to proceed on that to make the most of your money, to make the most of your time, to help people, to help your country and everything like that. Let's move on to the content right away. So this graph, as you can see, is the technological graph. Okay, this is the adoption curve कि कितना जल्दी दुनिया में कितने लोग कितनी जल्दी एक टेक्नोलॉजी को जो नई आई है उसको अडॉप्ट करते हैं. शुरू में हर टेक्नोलॉजी में कुछ प्रॉब्लम्स रहती हैं, बट उससे हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि टेक्नोलॉजी खराब है. उसके अंदर की कुछ चीजें हैं जिसको हम ठीक करके उस टेक्नोलॉजी को बहुत बुलेट प्रूफ बना सकते हैं. तो आइए देखते हैं कि वो कौन सी टेक्नोलॉजी है जो कि दैट इज इन राइट इन फ्रंट ऑफ अस, just knocking our door and we don't even know. But companies like banks, financial institutions, governments, they are using this technology to put their upper hand in the global economy. So let's begin. So this is a bell-shaped curve, like we have started in mathematics. Alright? So होता क्या है, जैसे आप मान लीजिए स्मार्टफोन्स हैं. जब स्मार्टफोन्स आए थे तो there was a smartphone which was like a smartphone which has buttons. There was Nokia Engage phone. Then came the touch phone, the touchpad phone, which was very expensive in the beginning. But only a few people adopted it, and the companies who adopted it, like Samsung, Apple, Dell, Lenovo, etc., they made a huge lot of money. And we ourselves some of us work for those companies only. So why not take advantage of it? Why not invest in it? If we don't want to do a startup on the technology, we should invest in it. हमें उसमें पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए इन द राइट डायरेक्शन. उसके लिए थोड़ी सी स्टडी लगती है, थोड़ी सी रिसर्च लगती है, जो हमें से बहुत लोग नहीं करते हैं. टू बी ऑनेस्ट, थोड़ी सी वो रिसर्च और थोड़ी सी वो स्टडी करेंगे तो बहुत ही अच्छा एक इन्वेस्टमेंट आपको आपके फ्यूचर के लिए मिल सकती है. एंड व्हाई नॉट टेक अ बेनिफिट ऑफ दैट एंड डिस्ट्रीब्यूट इट लेटर इन द पुअर एंड अनप्रिविलेज्ड पीपल व्हेन यू अर्न अ लॉट ऑफ मनी. दैट्स माय अंडरस्टैंडिंग. सो होता क्या है कि इनिशियली there are early adopters, then there comes a early majority, there comes a late majority, and then there are laggards. Laggards होते हैं कि जो इस टेक्नोलॉजी को बहुत अच्छी तरीके से अडॉप्ट नहीं कर सकते हैं. So for example, जो हमारे दादा या दादी जी हैं, मैं किसी को पॉइंट आउट नहीं करना चाहता हूँ, बट जस्ट एन एग्जाम्पल, जो हमारे दादा या दादाजी हैं, तो जब स्मार्टफोन्स आए, सो दे हैव पास्ड आउट एन एज ऑफ लेट मेजोरिटी एंड समथिंग लाइक दैट. हमारे पापा मम्मा लोग यूज कर लेते हैं स्मार्टफोन्स, व्हाट्सएप वगैरह यूज करते हैं, फेसबुक यूज करते हैं, बट दादा दादी के लिए वो बहुत मुश्किल है. ठीक है, तो दादा दादी का समझ आता है कि वो टेक्नोलॉजी क्यों नहीं यूज कर पाते हैं. एक एज बैरियर होता है, एक मेंटल बैरियर होता है कि नहीं यूज कर पा रहे हैं. वो लैंडलाइन भी बहुत कम ही यूज करते होंगे, आपने देखा होगा. तो उनका समझ आता है कि वो लैगर्ड्स कैटेगरी में आए और सबसे लेट अडॉप्ट करें उस टेक्नोलॉजी को. बट आप जो यंग हो, आपके पास स्मार्टफोन्स हैं, आपके पास इंटरनेट है, आपके पास सारी टेक्नोलॉजी है, हम रोज रोज नई चीजें सीखते हैं. क्या हमारा यहाँ पे आना बिल्कुल ठीक है? दिस इज वेरी बैड फॉर अस एंड फॉर आवर कंट्री. ठीक है, तो यहाँ नहीं आना है. सो जब स्मार्टफोन्स आए थे तो देयर वर 2.5% पीपल हु इन्वेंटेड कि स्मार्टफोन्स हो क्या सकते हैं. देन केम अर्ली अडॉप्टर्स, जो कंपनीज ने उनको
इंटरनेट को या स्मार्टफोन्स को या कंप्यूटर्स को यूज किया अपने बिजनेस के लिए, लाइक जेफ बेजोस, गूगल हो गया, एप्पल हो गया, Amazon है, एंड देयर आर मेनी मोर सच कंपनीज, दीज आर द बिग वंस। तो वो थे या तो इन्वेंटर्स थे जिन्होंने टेक्नोलॉजी को बनाया, या फिर वो अर्ली अडॉप्टर्स थे उसके, ठीक है। तो आप ये सोचेंगे ना कि जैसे आप सोच लीजिए क्रिकेट का एग्जांपल है, MS धोनी है, सो ही रीड्स द गेम वेरी वेल, उसको पता है कि यहाँ पे जाके क्या होना है, इस ओवर में 50 या मतलब 40 to 50 ओवर्स में क्या होना है, तो उसके लिए पहले से प्लान करके चलता है। दैट इज वाई ही इज अ वेरी सक्सेसफुल कैप्टन एंड अ वेरी सक्सेसफुल क्रिकेटर एंड अ ब्रिलियंट माइंड इन गेम ऑफ क्रिकेट। सो हमें भी यही करना है, ठीक है। अगर हमें पैसा कमाना है, हमें थोड़ी सक्सेस चाहिए, तो थोड़ा सा एफर्ट तो करना पड़ता है यार, ठीक है। तो अर्ली अडॉप्टर्स हो गए जो कि कंपनीज में अपने उसको लगाते हैं, फिर भी अर्ली मेजोरिटी, लाइक कुछ बच्चे होते हैं जो बहुत जल्दी किसी चीज को अडॉप्ट कर लेते हैं, बहुत जल्दी लर्न करते हैं, बहुत जल्दी कुछ भी करते हैं, देयर कम्स दैट मेजोरिटी। या जो CEOs होते हैं अपनी कंपनी में उस टेक्नोलॉजी को ले आते हैं, अपनी कंपनी को रीइन्वेंट कर देते हैं, देयर आर मेनी सच पीपल, तो वो होते हैं अर्ली मेजोरिटी। इससे लेट अगर आएंगे तो आपका बेनिफिट इस कर्व की तरह फिनिश। फिर आप बस स्मार्टफोन्स खरीद सकते हैं, उस कंपनी में इन्वेस्ट करके, उसके शेयर में इन्वेस्ट करके, या किसी नई टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करके उसका फायदा नहीं उठा सकते हैं। आप बस अपना पैसा उस कंपनी को देंगे, उसका प्रोडक्ट यूज करेंगे, दैट्स इट। प्रॉफिट कौन कमाएगा? कंपनी। आपको क्या मिलेगा? बस एक इंटरनल सेटिस्फैक्शन कि मेरे पास उसका प्रोडक्ट है, एंड यू विल बी वेरी गुड। अगर आपको वो प्रोडक्ट लेना ही है, क्यों ना वो पैसे इन्वेस्ट किए जाए शुरू में, उसको डबल या ट्रिपल या 5 गुना किया जाए, फिर एक हिस्से से उसका फोन या लैपटॉप या नोटपैड या कुछ भी लिया जाए, ठीक है, जो भी हमारे iPad वगैरह होते हैं, और उसके बाद जो पैसा बचता है यार उसके लिए अपनी फैमिली के लिए कुछ करें, अपने लिए कुछ करें, दुनिया के लिए कुछ करें, चैरिटी करें, कुछ भी करें। देन वी हैव मल्टीपल ऑप्शंस। जब हमारे पास ऑप्शन ही रेस्ट्रिक्टेड होंगे कि पैसा ही इतना है और अपने लिए पहले कुछ करना है, तो बाकियों के लिए क्या करोगे यार आप? अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट। सो इनटू कंटेंट। सो ब्लॉकचेन इज द अपकमिंग टेक्नोलॉजी, ठीक है। आप में से कुछ काफी लोगों ने सुना होगा कि ब्लॉकचेन है, ब्लॉकचेन आया है, आएगा, ऐसा हो रहा है, कंपनीज यूज कर रही हैं, और कुछ लोगों ने नहीं सुना होगा। तो बेसिकली सबने बिटकॉइन का शायद नाम सुना ही होगा, जो भी मेरे यूजर्स या जो भी मेरे क्लाइंट्स हैं, सबने बिटकॉइन का नाम सुना होगा। तो अभी तक हम सुनते आए हैं कि हर कंट्री में अपनी अपनी करेंसीज होती हैं, ठीक है। बिटकॉइन इज दी वन वर्ल्ड करेंसी, अगर हम उसको एक सिंपल लैंग्वेज में माने तो। बॉर्डरलेस है, फ्रिक्शनलेस है, यहाँ से कहीं पे भी भेज सकते हैं, किसी भी कंट्री में उसको सेल करके यूज कर सकते हैं, कुछ भी प्रोडक्ट ले सकते हैं, कुछ भी सर्विसेज ले सकते हैं, उससे पे करके। बिटकॉइन ब्लॉकचेन की फर्स्ट एप्लीकेशन है कि फर्स्ट टाइम ब्लॉकचेन को इस दुनिया में अप्लाई किया गया रियल टाइम यूज केस में, तो वो बिटकॉइन में किया गया। तो अभी हम बिटकॉइन के अर्ली अडॉप्टर्स के लेट पार्ट में हैं, अभी हम अर्ली अडॉप्टर्स नहीं है। अगर आपने यहाँ पे सही जगह पे सही रिसर्च करके इन्वेस्ट किया, तो आपको ये यहाँ से इतना प्रॉफिट जो होता है, ये प्रॉफिट आपको छोटा सा दिख रहा है, दिस में भी 10 टाइम्स, 20 टाइम्स, 50 टाइम्स, 100 टाइम्स आपका पैसा 100 गुना तक भी हो सकता है कुछ रिस्पेक्टिव कंपनीज या टोकन्स में इन्वेस्ट करने से, और उसके लिए रिसर्च चाहिए होती है। अगर आप अर्ली मेजोरिटी में आएंगे तो आपको थोड़ा बेनिफिट जरूर मिलेगा, बट लेट मेजोरिटी और लेगार्ड्स में ना आए। दैट इज माई हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ माई फेलो फ्रेंड्स, क्लाइंट्स, सब्सक्राइबर्स, व्यूअर्स, इंडिविजुअल्स, कंपनीज, कोई भी हो वो, ठीक है। तो अब हम बेसिकली इसको मैं वाइंड अप करता हूँ जल्दी से। कुछ हमने अपनी लाइफ में या उससे पहले हिस्ट्री में रेवोल्यूशंस पढ़े और टेक्नोलॉजीज पढ़ी। तो पहले रेवोल्यूशंस की बात करते हैं। तो रेवोल्यूशंस में क्या होता है? इंडस्ट्रियल और ग्लोबल, ठीक है। एक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था जिसमें बड़ी बड़ी फैक्ट्री सेटअप करी थी ब्रिटिशर्स ने, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी भी थी। तो उन्होंने क्या किया कि छोटी छोटी फैक्ट्रीज के बजाय एक बड़ी फैक्ट्री मतलब प्लांट बनाया, उसमें प्रोडक्शन शुरू करी। उससे क्या हुआ? कॉस्ट ऑफ मेकिंग और या हमारे जो एक्सपेंसेस होते हैं, रनिंग कॉस्ट, ऑपरेटिंग कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट, वो बहुत नीचे आ जाते हैं। तो ये हमने ग्लोबल लेवल पे देखा। फिर हमने इंडिया में देखा व्हाइट रेवोल्यूशन, जो कि मिल्क के रिगार्डिंग था। फिर एक ग्रीन रेवोल्यूशन भी आया था, ठीक है, जो ग्लोबली आया था। फिर 1919 ऑनवर्ड्स हमने, या उससे पहले, कंप्यूटर की आविष्कार हुआ था, ठीक है। कंप्यूटर वॉज फाउंड आउट कि ये होता क्या है। तो ये जो आपको रूम आपके होते हैं, उतने बड़े कंप्यूटर्स होते थे। तो वहां से हम आजकल इतने से आईपॉड्स पे आ चुके हैं या किसी डिवाइसेस पे आ चुके हैं। दैट वाज द केस ऑफ स्मार्ट रेवोल्यूशन, जो हमारा स्मार्टफोन्स आए, लैपटॉप्स आए, आईपैड्स, थिंक पैड्स, ये सब आए, ठीक है। तो ये सब थे रेवोल्यूशंस। इनका
हम इसमें थे नहीं, कहाँ थे पता नहीं, इसमें भी नहीं थे, पर यहाँ पे हम छोटे थे, जो मेरी एज के लोग हैं और जो मुझसे 10-15 साल बड़े हैं, उन्होंने वाइट रेवोल्यूशन और स्मार्टफोन रेवोल्यूशन भी देखा। क्या उन्होंने अमेजोन में इन्वेस्ट किया? नहीं किया, तब अपॉर्चुनिटीज नहीं थी। आज आप अमेजोन में भी इन्वेस्ट कर सकते हो, आप बिटकॉइन में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। एक ऐप है वेस्टेड नाम से, उससे आप यूएस में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में जितने भी शेयर्स होते हैं कंपनीज के जो लिस्टेड होते हैं स्टॉक एक्सचेंज पे, जैसे रिलायंस इंडिया में है, उनमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। तो आजकल बहुत सब कुछ खुल चुका है, आप कहीं पे भी कुछ भी इन्वेस्ट कर सकते हो इन अ प्रॉपर एंड लीगल वे। फिर हमने टेक्नोलॉजीज देखी, बल्ब जो थॉमस एडिसन का था, टेलीफोन जो ग्राहम बेल का था, फिर स्मार्टफोन्स और कंप्यूटर्स आए। अब क्या टेक्नोलॉजी है जो पहले स्मार्टफोन, कंप्यूटर्स एंड इंटरनेट वाज द की। इंटरनेट इज वेब 3.0 बेसिकली, ठीक है, एंड वेब 4.0 विल बी ब्लॉकचेन। व्हाई बिटकॉइन? आप सब मुझसे पूछते हैं कि यार इतना अच्छा तो कर रहे हैं हमारे बैंक्स, इतना अच्छा कर रहे हैं हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, हमारी गवर्नमेंट कितनी अच्छी है और कितनी अच्छी हमारी फिस्कल मॉनेटरी पॉलिसीज हैं, हमारा सेंट्रल बैंक आरबीआई बहुत अच्छा है, बाकी दुनिया के फेडरल रिजर्व जो यूएस का है वो बहुत अच्छा है। जब सब कुछ इतना अच्छा है और सब कुछ हमें देखते आए हैं कि सब कुछ ठीक एंड में हो ही जाता है, तो वाई बिटकॉइन, वाई ब्लॉकचेन, वाई क्रिप्टो करेंसीज? So guys, listen to me very carefully. I will put it in some small words and the words that you can understand. तो होता क्या है कि अभी चाइना ने अपना जो उनका युआन करेंसी है, जैसे हमारी रुपीज है, उन्होंने उसका डिजिटल वर्जन निकाल दिया ऑलमोस्ट। इट इज ऑलमोस्ट लाइव। तो वो क्या करेंगे, जो उनके बैंक्स हैं या फिर अलीबाबा है या टेंसेंट है या 16 पैसा है, ये सब बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जिनके पास वो डिजिटल युआन होगा, जो यूएस में किसी के साथ बिजनेस करते हैं या फिर वर्ल्ड में किसी के साथ भी बिजनेस करते हैं, इलेक्ट्रॉनिकली पेमेंट्स करते हैं, तो वो पेमेंट सिस्टम वो बना चुके हैं चाइना वाले। चाइना इज वेरी फास्ट इन सच थिंग्स। यूएस ने भी अभी तक अपना डिजिटल डॉलर नहीं बनाया है, उनका ब्लूप्रिंट आ गया है, वाइट पर आ चुका है, बट बना नहीं है। चाइना का ऑलमोस्ट पायलट टेस्टिंग में है और कभी भी आ सकता है। तो पर क्या है प्रॉब्लम? ये है कि जो पैसा है, जो मनी है, वो अभी भी गवर्नमेंट के कंट्रोल के अंडर ही रहेगा। गवर्नमेंट चाहे तो उसकी कभी भी पॉलिसी चेंज कर सकती है, कभी भी ऐसा कुछ कर सकती है, जैसे जीएसटी हुआ, इम्प्लीमेंटेशन हुआ, चाहे उसके लॉन्ग टर्म में आप सोचो कि मतलब चीजें अच्छी होती, बट उसका इम्प्लीमेंटेशन ठीक नहीं हुआ और उसके अंदर की जो चीजें हैं वो बार बार चेंज होती हैं। चेंज इसलिए होती है क्योंकि उन्होंने गलतियां की। सॉफ्टवेयर बिटकॉइन गलतियां नहीं करता, सॉफ्टवेयर मैथ्स कभी गलती नहीं कर सकती। ह्यूमंस एरर करते हैं और ह्यूमन एरर्स करते रहेंगे, मैं भी करता रहूंगा, आप भी करते रहेंगे, ठीक है। तो जब जीएसटी में बार बार इम्प्लीमेंटेशन हुए थे, इसका मतलब उसके अंदर गलतियां थी। फिर डिमोनेटाइजेशन हुआ था उससे पहले। सो पैसा जो है ना वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, रहना भी चाहिए, रेगुलेशन उसमें आने चाहिए, बट एक ऑप्शन होना चाहिए कि जिससे हम अपना पैसा डाइवर्सिफाई कर सकें, जो कि बिटकॉइन है, ठीक है। तो बिटकॉइन को कोई भी वर्ल्ड में कोई भी कंपनी नहीं चलाती है, कोई उसका सीईओ नहीं है, कोई उसकी मार्केटिंग टीम नहीं है। तब भी बड़े बड़े लोग जैसे पॉल टूडोर जेम्स, जो बहुत बड़े फंड हेज फंड मैनेजर हैं, और भी बहुत सारी हेज फंड कंपनीज हैं जो बिटकॉइन में इन्वेस्ट कर रही हैं, तो वो कुछ सोच के ही कर रही है, क्योंकि वर्ल्ड की हालत इस टाइम बहुत खराब है। और अगर हमारी कोरोना वायरस को अगर छोड़ दें, उससे पहले 2019 में, 2018 में जो इंडिया की हालत चल रही थी, जीडीपी जहां होनी चाहिए थी वहां नहीं थी, जितना हमारे पास पोटेंशियल था उतना गवर्नमेंट परफॉर्म नहीं कर पा रही थी, उतनी अच्छी नॉर्म्स नहीं थे। जीएसटी और डिमोनेटाइजेशन का जो इम्प्लीमेंटेशन था वो गलत टाइम पे और इकट्ठे उन्होंने कर दिया था, इकोनॉमी की बैकबोन तोड़ दी थी। जैसे कि रघुराम राजन जो हमारे फॉर्मर आरबीआई गवर्नर थे, उन्होंने भी कहा, और बाकी जो भी इकोनॉमिस्ट हैं सब ये लोग सभी ये कहते हैं कि इंडिया ने जो इम्प्लीमेंटेशन किया वो सही नहीं था, चाहे इंडिया के इंटेंशन सही थे। तो इंटेंशंस कितने ही अच्छे हों, चाहे आपके हों, चाहे मेरे हों, चाहे गवर्नमेंट के हों, लेकिन अगर वो सही तरीके से इम्प्लीमेंट या एग्जीक्यूट नहीं हो पाते तो उन इंटेंशंस का कोई फायदा नहीं होता इस दुनिया में। बिटकॉइन का इम्प्लीमेंटेशन हुआ 2009 में, तब बिटकॉइन $1 का भी नहीं था और आज 9,500 $9,700 का है, अपने बलबूते पे। कोई कंपनी नहीं है, कोई मार्केटिंग नहीं है, कोई मार्केटिंग नहीं करता है इसकी, किसी के कंट्रोल में नहीं है, वर्ल्ड में कहीं से कहीं पे भी बेच सकते हैं, क्लैरिटी है, हमें पता है पैसा कहां जा रहा है, कौन कहां सेंड कर रहा है, कैसे यूज कर रहा है। सो दैट्स व्हाई दिस इज द नेक्स्ट टेक्नोलॉजी। इसके बाद और भी प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे कि इथीरियम है जो सेकंड बिगेस्ट कॉइन है मार्केट कैप के हिसाब से। उसने क्या किया है कि सपोजिटली मैं आपके घर में रेंट पे रहता हूँ,
मेरा रेंट है 10,000 रुपए और मुझे नहीं चाहिए कि जो ब्रोकर्स होते हैं वो हमसे 1 महीने का रेंट ले जाते हैं हमारी तरफ से भी और लैंडलॉर्ड की तरफ से भी, तो वो पैसा खा जाते हैं जबकि उनका कोई यूज केस नहीं है, बस वो दो पार्टीज को मिला रहे हैं एक जगह। तो ऐसे ही इथेरियम क्या करता है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स बनाता है। ठीक है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स कुछ नहीं है, जो ब्रोकर होता है वो हमारे और लैंडलॉर्ड के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट करवाता है, राइट। अब टेक्नोलॉजी क्या करेगी, हर चीज को स्मार्ट कर देती है, जो हम ह्यूमंस नहीं कर पाते वो टेक्नोलॉजी कर जाती है। तो फोन्स थे उसको स्मार्ट फोन्स कर दिया, ठीक है ना। ऐसे ही कॉन्ट्रैक्ट्स को स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स बना दिया। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का मतलब कुछ नहीं है, बेसिक है कि जो कॉन्ट्रैक्ट हमारे बीच में है उसके बीच में ब्रोकर ना आए, डायरेक्ट हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट रहे, वो वैलिड हो, उसको कोई फोरगो नहीं कर सकता, उसको कोई ब्रीच नहीं कर सकता। और मान लीजिए मैं आपके घर में एक रूम पे रहता हूँ रेंट पे, 10,000 रुपये किराया है, तो हमारे बीच में 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट हो गया 1,20,000 रुपए का, राइट। ठीक है, 1,20,000 रुपए का कॉन्ट्रैक्ट हो गया, तो ऑटोमेटिकली हर महीने मेरे पास बैंक अकाउंट से उसको अगर लिंक कर देंगे उस कॉन्ट्रैक्ट को, तो मेरे अकाउंट से हमेशा हर महीने 10,000 रुपए खुद ही डिडक्ट होते रहेंगे और आपके पास सीधे आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे। ये बहुत बेसिक एग्जांपल है, इसका इम्प्लीमेंटेशन बहुत बड़ी बड़ी जगह हो रहा है, जो कि मैं इस वीडियो में शायद बताना पाऊंगा, जो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। सो बेसिकली यहाँ आने की कोशिश करें, ठीक है। ऐसे रेवोल्यूशंस, ऐसी टेक्नोलॉजीज का फायदा उठाएं। इंटरनेट का फायदा हम नहीं उठा पाए क्योंकि हम छोटे थे, जो बड़े थे वो भी इसलिए उठा पाए क्योंकि अपॉर्चुनिटीज कम थी। आज की डेट में इंटरनेट है, कहीं पे भी इन्वेस्ट करो यार, कुछ भी करो, मेक अ लाइफ आउट ऑफ योरसेल्फ, ठीक है। बी रिस्पॉन्सिव, अर्न मनी, यूज इट फॉर गुड डीड्स एंड गुड थिंग्स, एंड आई विल साइन ऑफ हियर एंड आई वांट यू टू, if not invest, at least think about, read about what blockchain is, what Bitcoin is, and if you want any further information, I will give my contact number below, my Telegram, my WhatsApp contact below for you to कि आप मुझे contact कर पाएं। और अगर आप मेरे पास already around 25-30 clients हैं and I have started only 2 months ago, so I was working with Deloitte also, so I thought why not do something good for me and for people. So I decided to start this, educate people so that people can earn like governments do. हम फ्रॉड से बच सकें, गवर्नमेंट्स के जो होते हैं बहुत सारे, जो हमें पता है, और बहुत ऊपर लेवल पे होते हैं जो कुछ हमें पता भी नहीं होते हैं। सो ब्लॉकचेन क्या लाता है, ट्रांसपेरेंसी लाता है, ग्लोबल एक्सेस लाता है, सबके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज लेके आता है। क्या आप नहीं चाहते कि आपके बच्चे, आपके भाई, आपके बहन सही तरीके से हर एक अपॉर्चुनिटी का फायदा ले पाए? या फिर सिर्फ हम वो जो रिजर्वेशन सिस्टम होता है कि इसकी इतनी सीट रिजर्व है, इसकी इतनी सीट रिजर्व है, इतनी सीट रिजर्व है, पार्लियामेंट वगैरह की ऐसी तैसी में हम रह जाएं और हमारे जो हम डिजर्व करते हैं वो मिल ना पाए। जो डिजर्विंग है उसको वो मिलना चाहिए, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो पोस्ट हो, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन की कोई चीज हो, चाहे कुछ भी हो। बी अ पार्ट ऑफ दीज टेक्नोलॉजीज, बी अ पार्ट ऑफ दीज रेवोल्यूशंस, बी इन द अर्ली अडॉप्टर्स। आप एक बार समझेंगे तो आपको बहुत अच्छे समझ आएगा। आप इससे बहुत सारे लोग इंजीनियर्स भी होंगे, बहुत सारे लोग फाइनेंस कम्युनिटी से होंगे। आप ये फिनटेक है बेसिकली, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, सिंपल as I can put it, and Bitcoin is the master of it. Big people are investing in it and you should not be left behind. Contact me for further details, when to invest, where to invest, how to invest. We are there to advise you. We are all weather advisors. Take care. Bye bye.